إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصيتم فما استيسر من الهدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا بڑائی اور کبریائی بزرگی مسخانے کئی کائنات مالک کے امر سما کے لیے لائق اور بہتر ہے جو ہر چیز کا مالک خالق اور رازق ہے جو مشکل کشا حاجت روا بعد ہم دعا کرتے ہیں یا الہ العالمین قیامت کے صبح تک تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر درود و سلام کی اور انشاءاللہ خصوص بالخصوص اس ہستی مقدس و مقدس مبارکہ جو ہماری مشق و ہدایت کے لیے نبی اور رسول بنا کر اس دار پاکی کے اندر مبعوث کیے گئے اس سے میری دعا آمینہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر عبدالمطلب کے نور نما امام کائنہ رحمت للعالمین احمد مصطفی محمد مصطفی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی معزز سامعین وحاضرین جمع وسامعات میرے بھائیوں اور مسلمانوں اور دوستوں آج کی اس جمعہ میں میرا جو موضوع بیان ہے وہ ہے حج کے فوائد احکام اور طریقہ
معزز سامعین، ایک بات سب سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں اس کے بغیر کسی مسلمان کا بنیاد مکمل نہیں ہوتا ہے۔ ان بنیادی ارکان میں سے ایک حج کا ادا کرنا بھی ہے۔ اگر اللہ تعالی نے کسی کو صاحب استطاعت بنایا ہے اور وہ کلمہ والا انسان کو ہے، نمازیں قائم کرتا ہے لیکن حج نہیں کرتا ہے، تو اس کا اسلام وہ اسلام کے ایک بنیادی رکن کو ڈھا دیتا ہے، اسلام کے ایک بنیادی پیلر کو ڈھا دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ حج کا کرنا ہر صاحب استطاعت شخص پر، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، ہر صاحب استطاعت شخص پر جو ہے زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج بیت اللہ وصوم رمضان۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اگر 5 قائم رہے تو ایک بندہ پکا مسلمان ہوتا ہے، لیکن اگر 5 قائم نہیں رہے تو اس کی جو وعیدیں آئی ہیں حج کے تعلق سے وہ جو ہے بیان کی جائے گی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حج کے چھوڑنے والوں پر جو اپنا عقیدہ بیان کیا ہے وہ عقیدہ بھی پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجیے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس بات کی گواہی دینا سب سے بڑی، سب سے عظیم بنیاد، سب سے عظیم بات یہی ہے۔ اس کے بغیر کوئی عمل آدمی کا قابل قبول اللہ کے دربار میں نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا نمبر نماز قائم کرنا، تیسرا نمبر زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا نمبر اللہ کے گھر خانہ کعبہ کا حج کرنا، اور 5واں نمبر رمضان کے روزے رکھنا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، علیکم الحج، تم پر حج ضروری ہے، تم پر حج واجب ہے، تم پر حج فرض ہے، تو حج کیا کرو۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے اور فرمایا اللہ کے رسول کیا حج ہر سال ہم پر ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد فرمایا لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال تم پر حج کا کرنا واجب قرار دے دیا جاتا اور تم اس کی استطاعت نہیں کر سکتے۔ معلوم چلا کہ سال میں تو نہیں، لیکن صاحب استطاعت شخص پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کا کرنا واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے، اور اگر نہیں کرتا ہے تو وہ اپنی زندگی میں اسلام کے بنیاد کو چھوڑتا ہے، اسلام کے ایک عظیم رکن کو چھوڑتا ہے، اسلام کے ایک بنیادی جو مقصد ہے، جو رکن ہے، اس کو ضائع کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اب آئیے میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ اسلام کے کن لوگوں پر حج فرض ہوتا ہے، فرضیت حج کے شرائط کیا ہے، حج کن لوگوں پر ہے، کن لوگوں پر نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے ہر عاقل، بالغ، آزاد، صاحب استطاعت مسلمان پر حج کا کرنا فرض ہے۔ ایک لفظ میں یاد کیجیے، ہر عاقل، بالغ، آزاد، صاحب استطاعت مسلمان پر حج کرنا فرض ہے۔ چنانچہ اگر کوئی آدمی کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں حج کرتا ہے، جیسا کہ ہمارے بہت سے کلمہ گو مسلمان بھائی ہیں جو کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن شرک کرتے ہیں، شرک کے گھٹگڑے میں ہیں، اگر وہ حج بھی کر لیں اور حج کرنے کے بعد پھر اللہ انہیں ہدایت دے دے اور وہ قرآن و سنت پر مکمل چلنے والے بن جائیں، اور پر دوبارہ حج کرنا ضروری ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے مشرک کی کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے تو اسلام کا لانا ضروری ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہے، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے
मैं आपके हाथ पर बैअत करता हूँ, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ आगे बढ़ाया। अम्र बिन आस ने अपना हाथ पीछे कर लिया। अम्र बिन आस ने अपना हाथ पीछे कर लिया। ज़माने का नबी है, क़यामत तक के लिए भेजा हुआ नबी है, और वहां पर उन्होंने उस नबी ने हाथ बढ़ाया। अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हाथ पीछे कर लिया। अल्लाह के नबी ने पूछा, अम्र बिन आस क्या मामला है? तूने कहा हाथ बढ़ाओ, मैंने हाथ आगे बढ़ाया, तुमने हाथ पीछे कर लिया। तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह के नबी इस्लाम कबूल तो करता हूँ, लेकिन एक शर्त है। अल्लाह के नबी ने कहा शर्त क्या है? कहा कि अल्लाह ताला मेरे पिछले गुनाह माफ कर दे, ये मेरी शर्त है। मेरी शर्त ये है कि मैंने जितने गुनाहें पहले की है वो गुनाह अल्लाह ताला माफ कर दे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या तू नहीं जानता है अन्ना इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ला व अन्ना अल-हिज्र यहदिमु मा काना क़ब्ला व अन्ना अल-हज्ज यहदिमु मा काना क़ब्ला। ऐ अम्र बिन आस, क्या तू ये बात नहीं जानता है कि इस्लाम लाना ये पिछले तमाम गुनाहों को खत्म कर देती है, और हिजरत करना ये पिछले तमाम गुनाहों को खत्म कर देती है। वो अन्ना अल-हज्ज, और हज का करना ये पिछले तमाम गुनाहों को खत्म कर देती है। हज की फजीलत भी ये बात मालूम हुई कि जो हज करते हैं उनके पिछले गुनाह जो है अल्लाह ताला माफ करता है, अल्लाह ताला बख्शता है, अल्लाह ताला वो खत्म कर देता है। तो इस्लाम किस पर फर्ज है? तो हर आखिर अकल वाला मजनून पर, पागलों पर हज फर्ज नहीं है। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि मक़तूल कलम है, इनसे कलम उठा दी गई है, जो मजबूर और पागल हो जाते हैं उन पर हज फर्ज नहीं है, क्योंकि वहां उनके कलम उठा लिए गए हैं, उनके लिए कोई चीज लिखी नहीं जा रही है। तो आखिर बालिग पर हज के लिए बालिग होना भी जरूरी है। अगर एक बच्चा है उसके वालिदैन नहीं है, लेकिन जब माल उसके पास बहुत ज्यादा छोड़ करके गए हैं, वो हज कर सकता है, साहब इस्तिताअत है, तो क्या वो अभी जो है बुलूगत से पहले हज कर ले? तो नहीं, बुलूगत से पहले हज कर भी ले तो वो फर्जियत वाला हज पूरा नहीं होगा। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक औरत ने अपना बच्चा बदल किया, ऊपर उठाया और फरमाया, अल्लाह के नबी क्या इस बच्चे पर हज है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर तू चाहे तो कर, लेकिन इसका सवाब तेरे लिए है। नाम हुआ जाती है अजर, हाँ कर सकता है ये बच्चा हज, लेकिन इसका सवाब तुझे मिलेगा। मालूम ये हुआ कि अगर बुलूगत से पहले अगर बच्चा हज करे तो ले जाए, बिल्कुल आप ले जा सकते हैं, हज उम्रे करा सकते हैं, लेकिन उसका सवाब वालिदैन को मिलता है। अब बच्चा बालिग हो जाए और बालिग होने के बाद भी साहिब इस्तिताअत रहे और वो कहे कि मैंने हज बचपने में कर लिया था, तो बचपने का हज जो है वो उसके लिए वो उसके फर्ज हज को साबित नहीं करता है। अब बालिग होने के बाद उसके लिए अपना फर्ज वाला हज पूरा करना जरूरी हो जाएगा। तो आकिल होना जरूरी है, बालिग होना जरूरी है, इसी तरीके से आजाद होना भी जरूरी है। हज के लिए आजादी भी जरूरी है। गुलामों पर हज, बांदियों पर हज नहीं है, लेकिन आप गुलाम और बांदी हज कर ले तो उनको सवाब तो मिलेगा, लेकिन आजाद अगर कभी हो जाए, गुलामियत से आजाद हो जाए, तो उसके बाद अगर वो साहिब इस्तिताअत हो तो उनको फिर से हज मुकम्मल करना होगा। इसी तरीके से चौथे जो शर्त है वो है साहिब इस्तिताअत होना। साहिब इस्तिताअत क्या है? अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलिल्लाहि अलन-नासि हज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। लोगों पर अल्लाह ताला के हक अदा करना जरूरी है और वो हज का हक है। लोगों पर अल्लाह ताला का हक जो हज का हक है उसे करना जरूरी है। मन इस्तताअ इलैहि सबीला, जो शख्स अल्लाह ताला के रास्ते में निकलने की ताकत रखता हो। अल्लाह के नबी से पूछा गया, अल्लाह के नबी इस्तिताअत का क्या माना है? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अज़्ज़ादु वल-राहिलतु, ज़ादे राह और सवारी का खर्च। अगर आदमी के पास ज़ादे राह का खर्च है कि वो जा सकता है खाते पीते हुए और सवारी भी मौजूद है, तो ऐसे शख्स पर हज का करना जरूरी है। अब आप अपने गरीदारों में झांक कर देखें कि क्या आपके पास जाने का खर्च है, और इसी तरीके से सवारी का खर्च अगर आपके पास मौजूद है तो आप पर हज का करना जरूरी होगा, वाजिब होगा, फर्ज होगा।
अब एक आदमी है जो है वो बुरा हो चुका है, वो सवारी पर बैठने की ताकत नहीं रखता है, वो मक्का पहुंचने की ताकत इस्तेमाल नहीं रखता है, तो उसके लिए जरूरी है कि अगर अल्लाह ने उसका माल दिया है तो वो हज बदल करवाए। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज का बने थे तो एक शख्स ने कहा लब्बैक शुक्रमा का जानिब से अल्लाह मैं हाजिर हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि शुक्रमा कौन है? वो फरमाने लगे शुक्रमा मेरा रिश्तेदार है, मेरा भाई है। तो अल्लाह के नबी फरमाया कि क्या तूने अपना हज कर लिया? पहले अपना हज करो फिर शुक्रमा के जानिब से हज करो। पहले अपना, यानी अगर कोई हज बदल करवाता है, किसी के बदले में हज करता है, तो उसके लिए जरूरी है कि पहले अपना हज मुकम्मल कर लिया हो, उसके बाद किसी की जाने से वो हज कर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर इस साल किसी ने हज अपना मुकम्मल कर दिया है, अब अगले साल उस आदमी को हज बदल में भेजा जा सकता है। अगर आप जाने की ताकत नहीं रखते हैं, आप पहुंचने की ताकत नहीं रखते हैं, तो आप उस आदमी को जब पहले से अपना हज मुकम्मल कर दिया हो उसे आप भेज सकते हैं। इसी तरीके से ये 5 शराइत मर्दों के लिए आकिल का होना, बालिग का होना, आजाद का होना, साहिब इस्तिताअत का होना और मुसलमान का होना, ये 5 मर्दों के लिए है। लेकिन एक औरत के लिए ज्यादा है। औरत के लिए खवातीन के लिए एक शर्त ज्यादा है, वो शर्त हम नहीं मानते हैं, वो शर्त मुकम्मल नहीं उतरते हैं। कोई भी मिल जाता है, कोई मत मिल जाए, बस जो है उसके पीछे पीछे उम्रे को चले गए, उसके पीछे पीछे हज को चले गए, कोई मत ना रहे तो 5 औरतें चली गई, ये करना दोस्त नहीं है। अल्लाह के फरमान कि तुमने से किसी औरत के लिए ये हलाल नहीं है कि वो 3 दिन का सफर करे, मगर जो सफर करना ही है तो वो महरम के साथ सफर करे। वो देखे अगर उसका शौहर है तो शौहर के साथ सफर करे, उसका बेटा है बेटे के साथ सफर करे, उसका जो है अगर ससुर है ससुर के साथ सफर करे, लेकिन किसी महरम के साथ जो है वो जो है सफर नहीं कर सकती है। बाज़ हदीसों में 1 रात का भी लफ्ज़ आया है, बाज़ हदीसों में 1 दिन का लफ्ज़ आया है। मालूम यह हुआ कि बगैर महरम के हज पे जाना, उम्रे पे जाना, ये दुरुस्त अमल नहीं है। ये औरतों के लिए छठी शर्त है। अगर कोई औरत जाना, अगर उस पर हज ये फर्ज हो चुका है, वो साहिब इस्तिताअत है, जा सकती है, तो उनके लिए एक छठा शर्त क्या है कि वो उनके लिए महरम का होना जरूरी है। बगैर महरम के वो हज पे नहीं जा सकती है। अगर महरम नहीं है तो वो जो है हज पे ना जाए। मेरे भाइयों, अब आइए मैं आपके सामने हज के कुछ फज़ाइल बयान करता हूँ। हज कीजिए इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्ला अल जन्नह, हज मबरूर का बदला जन्नत के सिवा कुछ नहीं है। दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हज पिछले तमाम गुनाहों को मिटा देती है, खत्म कर देती है। वअन्नल हज्ज यहदिमु मा काना क़ब्ला, हज पिछले तमाम गुनाहों को खत्म कर देती है, मिटवा देती है, अल्लाह ताला उसको मिटा देता है। और हज की जो तीसरी फजीलत ये है कि अगर आदमी हज में जाए और हज में या उम्रे में जाए और उसी दौरान उसका इंतकाल हो जाए, तो अल्लाह के नबी ने ऐसे शख्स के लिए एक अजीम बशारत सुनाई है। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम में से कोई शख्स हज में जाए और हज के दौरान उसी सफर के दौरान उसका इंतकाल हो जाए, तो वो क़यामत तक उसे हज का सवाब मिलता रहता है। और अगर तुम में से कोई शख्स उम्रे को जाए और उम्रे में इंतकाल हो जाए तो क़यामत तक उसे उम्रे का सवाब मिलता रहता है। ये एक अजीम फजीलत हज वालों के लिए है और उम्रा वालों के लिए। मेरे भाई, इसी तरीके से चौथी फजीलत क्या है? हाजी और उम्रा करने वाला ये अल्लाह का मेहमान होता है। अल्लाह के मेहमान है अल-गाज़ियु फी सबिलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में ग़ज़वा जिहाद करने वाला और हज और उम्रा करने वाला वफ़दुल्लाही, ये अल्लाह के मेहमान है, ये अल्लाह के दर के मेहमान है। दआहुम सअजअबूहु, अगर ये दुआ करते हैं अल्लाह की दुआ कबूल करता है। वसअलूहु फअअताहु, और अगर ये अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह उन्हें दे देता है। जो हलाल चीज का मुतालबा करते हैं अल्लाह उन्हें दे देता है। तो ये अल्लाह के वक्त है, अल्लाह के मेहमान है। अल्लाह ताला इनकी मेहमान नवाजी इस
तरीके से करता है कि अपने मशाइख की ज़ियारत करवाता है, मस्जिद हराम की ज़ियारत करवाता है, मीना की ज़ियारत करवाता है, अरफा की ज़ियारत करवाता है और बहुत से मकामात जो है जो मशाइख में से है उन मकामात को दिखवाता है, वहाँ दुआएं भी करवाता है और अल्लाह ताला जो है बहुत सी नेकियां इस हज और उम्रे के जरिए उसके लिए ज़खीरा बना देता है, जमा करवा देता है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते एक लंबी हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जब तुम में अल्लाह के नबी फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स हज के लिए कसद करता है और अपने ऊँटनी पर अपनी सवारी पर बैठ जाता है तो हर कदम के बदले में एक नेकी और एक गुनाह माफ किए जाते हैं और एक नेकी लिख दी जाती है। और उसके बाद जब वो तवाफ के बाद 2 रिकातें अदा कर लेता है तो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के नस्ल से उनकी औलाद में से एक गुलाम आजाद करने का सवाब दिया जाता है। और फिर जो है उसके बाद जब वो सफा मरवा की सही करता है तो 70 गुलामों के बराबर उसको 70 गुलामों के आजाद करने के बराबर सवाब दिया जाता है। और फिर जो है जब वो तवाफ इफादा कर देता है तो वो ऐसे ही हो जाता है जैसे अपने माँ के पेट से जैसे वो बगैर गुनाह के बगैर खताओं के निकलता है वो वैसे ही बगैर गुनाह और खताओं वाला बन करके वो वापस लौटता है, बशर्ते के जो है उसका हज हो, उसके हज में खामियां ना हो, उसके हज से अल्लाह ताला कबूल कर ले तो ऐसा शख्स जो है ये पैदा होने वाले बच्चे की तरह वापस लौटता है हज करके। मेरे भाइयों, तो ये फजीलत उस शख्स को ही हासिल है जो हज करके आता है। और बहुत से लोग होते हैं दुनिया में अल्लाह ताला ने दिया है लेकिन जो है मशगूलियात की वजह से हज नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे भाइयों, मशगूलियात तो जिंदगी भर है आपके साथ, लेकिन कहीं मशगूलियात की वजह से एक अजीम हुक्म, एक अजीम फर्ज आपकी जिंदगी से ज़ाय ना हो जाए और कहीं ऐसा ना हो कि देखते देखते आप इंतकाल कर जाए। अल्लाह के फरमाने मन अरादल हज फल्यतअज्जल, जो हज का इरादा करता है उसे हज में जल्दी करनी चाहिए। फइन्नहु यमरूजुल मरीज़, कहीं वो मरीज ना हो जाए, कहीं वो बीमार ना हो जाए, कहीं उसकी मौत ना हो जाए, इसलिए उसे हज में जल्दी करनी चाहिए। सोचते सोचते अचानक हार्ट अटैक हो गया, अचानक खुदा चीज हो गई और एक अजीम हुक्म, एक अजीम चीज जो है आपकी जिंदगी में ज़ाया खत्म हो गई। मेरे भाइयों, आज हज के नाम पर बहुत से लोग जो है वाहिया बटोर रहे हैं और जो है मोबाइलों में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं और वो चीज है कि पैदल हज करना। शहाब चतुर नाम का एक शख्स है जो केरला से निकल करके कई दिनों की मसाफत के बाद वो हज को गया और लोगों ने ये समझ लिया कि ये एक अजीम कामयाबी वाला काम कर दिया है, इसकी गुनाहें माफ कर दी गई है और ये बहुत नेककार आदमी बन गया है। उसी की देखा देखी एक लेडीज भी जो है बगैर महरम के निकल चुकी है, जिनका नाम सना अंसारी है। मेरे भाइयों, पैदल हज करने वाले जो है जो ऐसा कर रहे हैं, इस तरीके का अमल जो है उम्मत इस्लामिया में जायज नहीं है, बल्कि जो है ये कबीह अमल है, एक बुरा अमल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कुछ लोग जमघट लगाए हुए हैं, देखा कि कुछ लोग जमघट लगाए हुए हैं, भीड़ लगाए हुए हैं। अल्लाह के नबी ने पूछा क्या मामला है? लोग कहने लगे कि इन्होंने नजर मानी है कि पैदल हज को जाएंगे, अगरचे ये बूढ़े हो चुके हैं, सवारी में सवार नहीं होंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया इनसे कहो कि सवारी पे सवार हो जाए। ये इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है कि अपनी जानों पर जख्म लगाए जाए, अपने जानों पर जुल्म किया जाए। तो इस तरीके का अमल जो है ये उम्मत इस्लामिया में एक नई बिदअत की शक्ल इख्तियार कर रही है, एक नई चीज की शक्ल इख्तियार कर रही है और दूसरी जमातें जो है इसको बहुत अच्छा तसव्वुर कर रही है, अच्छा मान रही है। अब आइए मैं आपके सामने हज के ताल्लुक से जो है कुछ जो तरीका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, उम्रे के ताल्लुक से हम इंशाअल्लाह बाद में बयान की जाएगी। हज की 3 किस्में हैं, हज इफाद, हज क़िरान और हज तमत्तु। क्या कीजिए,
حج کی 3 قسمیں ہیں۔ حج افراد میں صرف حج کیا جاتا ہے، اس میں عمرہ نہیں ہوتا ہے۔ حج تمتع میں یہ ہوتا ہے کہ حج بھی ہوتا ہے اور عمرہ بھی ہوتا ہے، لیکن تمتع کے معنی ہوتے ہیں فائدہ اٹھانا۔ جب ایک آدمی حج تمتع کی نیت کر کے نکل جاتا ہے تو وہ جو ہے پہلے عمرہ کرے اور عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دے، اب وہ حلال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو پھر سے وہ احرام باندھے گا۔ اور حج کی تیسری قسم کیا ہے؟ حج کی تیسری قسم ہے حج قران۔ حج قران میں بھی حج اور عمرہ دونوں کی نیت کی جاتی ہے، لیکن اس میں یہ بات ہے کہ حج قران میں عمرہ کرنے کے بعد بھی آپ احرام نہیں کھول سکتے ہیں، آپ حلال نہیں ہو سکتے، لیکن حج تمتع میں عمرہ کرنے کے بعد آپ حلال ہو جائیں، اب احرام کو کھول دیں اور اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو مکہ میں جس مقام پر آپ موجود ہیں وہیں سے آپ احرام باندھیں، غسل کریں پہلے، پھر خوشبو لگائیں، احرام باندھیں اور احرام باندھنے کے بعد آپ مینا کی طرف روانہ ہو جائیں، مینا کی طرف روانہ ہو جائیں اور وہاں جانے کے بعد 5 نمازیں آپ کو پڑھنی ہے۔ پہلی نماز ظہر ہے، ظہر کی نماز اپنے وقت میں پڑھیں، بغیر قصر کر کے اپنے وقت میں قصر کر کے پڑھیں، پھر عصر کی نماز کو قصر کر کے پڑھیں، مغرب کی نماز پڑھیں، عشاء کی نماز قصر کر کے پڑھیں، پھر جو ہے فجر کی نماز پڑھیں اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد طلوع شمس کے بعد جیسے شمس نکل جائے اس کے بعد آپ جو ہے عرفہ کی طرف روانہ ہو جائیں، عرفہ کی طرف روانہ ہو جائیں اور وہاں ایک جگہ ہے نمیرہ، جامع مسجد بنائی گئی ہے مسجد نمیرہ، وہاں جائیں اور وہاں جانے کے بعد وہاں امام اترتا ہے، امام آتے ہیں، وہ خطبہ دیتے ہیں، پہلے ظہر اور عصر کی نماز جمع بین الصلاتین کر کے اول وقت میں پڑھی جاتی ہے، امام کے پیچھے پڑھیں اور اس کے بعد خطبہ سنیں اور خطبہ سننے کے بعد میدان عرفات میں جا کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کے وہاں پر اللہ تعالیٰ سے ایسی دعائیں کریں، کیونکہ اللہ کے فرماتے ہیں خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، دنیا کی سب سے بہترین دعا عرفہ کی دعا ہے۔ سب سے بہترین دعا جو آپ کہیں بھی مانگے، اس مسجد میں مانگے، دہلی کی جامع مسجد میں مانگے، کہیں بھی مانگے، لیکن سب سے بہترین دعا جو آپ کے لیے ہے وہ عرفہ کی دعا ہے۔ اسی لیے اللہ کے وسلم وہاں پر رہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر رہ کر کے دعائیں کی ہے اور اللہ تعالیٰ سے خوب گریہ گزاری کی ہے۔ تو عرفہ کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ وقوف عرفہ، عرفہ میں کھڑ جانا ہی حج ہے، عرفہ میں وقوف کرنا ہی حج ہے۔ اگر کوئی عرفہ میں نہیں تھامتا ہے اس کا حج ناقص ہے، اس کا حج نہیں ہوتا ہے، اس کا حج نہیں ہوتا ہے۔ وہاں پر جو ہے آپ کو ظہر اور عصر کی نماز جمع بین الصلاتین کر کے پڑھنی ہے اور خطبہ سننی ہے، اس کے بعد دعاؤں میں مشغول ہو جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو فرمایا اے بلال لوگوں کو خاموش کرو، لوگ خاموش ہو گئے تو فرمایا کہ اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے، پیغام پہنچانے والے نے پیغام پہنچایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اہل عرفہ کو معاف کر دیا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کیا یہ عمل یہ چیز صرف ہمارے لیے ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ عمل یہ ثواب ہر اس شخص کے لیے ہے جو قیامت تک آنے والے لوگ ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل عرفہ کو معاف کر دیا ہے۔ یہ فضیلتیں حج ہی میں آپ کو حاصل ہونے والی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ غروب شمس تک وہیں پر بیٹھے ہوئے آپ دعائیں کرتے رہیں، اس کے بعد جب غروب ہو جائے اس کے بعد بغیر نماز پڑھے آپ مزدلفہ کی طرف نکل جائیں۔ یہاں دیکھیے نماز کا وقت یہاں ہونے کا قریب ہوتا ہے، ہو جاتا ہے، لیکن اسلام کا حکم یہ ہے کہ تمہیں نماز عرفہ میں مغرب کی نہیں پڑھنی ہے، مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں جمع بین الصلاتین کر کے مزدلفہ میں آپ کو پڑھنی ہے۔ وہاں جائیں اور وہاں جانے کے بعد آپ صرف کیا کریں گے، مغرب اور عشاء کی نماز جمع بین الصلاتین کر کے قصر کے ساتھ پڑھیں اور وہ کوئی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دونوں نمازیں پڑھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ میرے بھائیوں وہاں پر مزدلفہ میں صرف 2 نمازیں ہیں، وہاں پر سنت وغیرہ بھی پڑھنا نہیں ہے،
वहाँ को नमाज़ें पढ़ करके अल्लाह के नबी सो गए। लेकिन अल्लाह के नबी ने यह भी हुक्म दिया है कि जो औरतें हैं और जो बच्चे हैं, जो माजूर और कमजोर लोग हैं, वो आधी रात ही को जो है मैं मुज़दलिफा से मिना की तरफ रवाना हो जाए। चुनांचे बहुत से जो कमजोर लोग हैं, जो औरतें थी, आधी रात को ही मुज़दलिफा से मिना को रवाना हो गए। लेकिन जो सहाबे किराम बकिया थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फजर की नमाज पढ़ करके मुज़दलिफा से मिना को रवाना हुए। वहां जाने के बाद यौमुन नहर का दिन होता है, यानी कि ईद उल अज़हा का दिन होता है। वो दिन उस दिन अल्लाह के नबी ने 4 अमल किया है। पहला अमल ये किया कि आपने कंकरी मारी और 7 कंकरी मारनी है और हर बार कंकरी मारते वक्त अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं और इस तरीके से खड़ा होना है कि आपके बाएं जानिब खाने काबा हो और दाएं जानिब मिना हो। इस तरीके से अल्लाह के नबी खड़े हो गए और आपने 7 कंकरियां मारी। अगर कोई औरत है या कमजोर आदमी है, कंकरी मारने की ताकत नहीं रखता है, तो कंकरी मारने में बदल का हिस्सा लिया जा सकता है, किसी को अगर नायब बनाया जा सकता है और वो उसकी जानिब से कंकरी मार सकता है। ये पहला अमल है यौमुन नहर के दिन। दूसरा अमल ये है कि आप कुर्बानी करें और कुर्बानी करने के बाद कुछ अपने लिए गोश्त ले आए, कुछ फकीरों और मिस्कीनों और फुकराह में तकसीम कर दें। लेकिन अभी क्या है, कंपनियां बनी हुई हैं तो वहां पर अपने पैसे को दे दे और देने के बाद वो आपके नाम से जो है कुर्बानी कर दिया करते हैं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी करने के बाद नाई को इशारा किया और उसको बुलाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले दाएं जानिब हलक करवाया, फिर दाएं जानिब आपने मंडवा दिया और बाएं जानिब फिर आपने मंडवाया। सहाबा कहते हैं कि अल्लाह के नबी के दाएं जानिब जो सहाबा थे उनको दाएं जानिब वाले बाल आपने दे दिए और जब बाएं जानिब वाली बारी आई तो अल्लाह के नबी ने हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु तआला को बुलाया और वो बाल हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु तआला को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया। इसमें ये चीज है कि अगर आदमी चाहे तो जो है अपने बालों को मुड़ा ले या चाहे तो अपने बालों को पूरे बाल से जो है छोटे करवा ले, लेकिन जो है जो मंडवाते हैं जो बाल हज और उम्रे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा रहमत की और मग़फ़िरत की दुआ की है कि अल्लाह जो लोग बाल मंडवा रहे हैं उनके लिए अल्लाह के नबी ने 3 मरतबा मग़फ़िरत और 3 मरतबा रहमत की दुआ की है। और जब एक मर्द जो है अपने बालों को नहीं मंडवाते हैं बल्कि जो है सिर्फ कस्र करवा लेते हैं, छोटे करवा लेते हैं, उनके लिए अल्लाह के नबी ने 1 मरतबा रहमत की या 1 मरतबा मग़फ़िरत की दुआ की है। और इस मामले में क्या करेंगी तो औरतें पूरे बाल को लेकर के 1 कोर के बराबर वो अपने बाल में से काट लेंगी। बस उनके लिए नहीं है, उनके लिए पूरे बालों को मुड़ाना नहीं है बल्कि पूरे बालों को जमा करके 1 कोर के बराबर अपने बालों को काट लेनी है। उसके बाद चौथा अमल जो है वो तवाफ़े इफाज़ा है। तवाफ़े इफाज़ा करे और उसके बाद फिर जो है आप मिना चले जाए और उसके बाद 11 और 12 को फिर कंकरियां मारनी है। तीनों जमरे में जाकर के 11 को भी और 12 को भी कंकरी मारनी है। अगर आदमी 13 को भी कंकरी मार दे, मिना में रह करके फिर आए और कंकरी मारे तो ये अफजल अमल है। तो ये है हज की चीजें हैं। इसके बाद आदमी जो है हज मुकम्मल हो जाता है। शॉर्ट में मुख्तसर में मैंने आपके सामने ये चीजें रखी है। अगर कोई आदमी जाने वाला है तो वो उलमाए किराम से बेहतरीन तरीके से जो है हज और उम्रे के तरीके सीखे। इसलिए अल्लाह के फरमाते हैं तुम्हें चाहिए कि हज के मनासिक सीख लिया करो। इसलिए कि मुझे नहीं लगता है कि इस साल के बाद मेरी जिंदगी वफा करने वाली है। तो हज के मनासिक और हज के उम्रे के मनासिक उम्रे के जो काम है वो उलमाए किराम से सीख लेनी चाहिए। उसके बाद हज और उम्रे हो जानी चाहिए। आखिर में हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह हमें से हम तमाम लोगों को अपने दर पर हज करने के लिए बुला, उम्रे करने के लिए बुला। अल्लाह ऐसे हज ऐसे उम्रे ऐसे हज करने की तौफीक अता फरमा जो हज मबरूर हो। अल्लाह हम तमाम लोगों को जब तक जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रख और जब खातमा फरमाना जब ईमान बिल खैर अता फरमाना। ऐ अल्लाह हमें से जो लोग मकरूज हैं उनके कर्ज की अदायगी की कोशिश पैदा फरमा दे। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिमा फीहि मिनल आयाति वज़्ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुर करीम मलिकुर रहमानिर रहीम।